नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो हम आपके सामने एक और पुस्तक का रिव्यू लेकर आ चुके हैं। कुरान शरीफ, अल्लाह का पैगाम सारे इंसानों के नाम, हिंदी तर्जुमा। यह इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है, कुरान। दो शब्द, सूरतों की फेहरिस्त। इसमें कुल 114 सूरत है। हम सभी के बारे में हमको पढ़ के बता देते हैं। अल फतिहा, अल बकरा, आल इमरान, अन निसा, अल माइदा, अल अनहम, अल अराफ, अल अनफल, अल तोबा, अत तोबा, यूनुस, हुद, यूसुफ, अल रहद, इब्राहिम, अल हिज्र, अन नहल, बनी इसराइल, अल कहफ, मरियम, ताहा, अल अंबिया, अल हज, अल मोमिनुम, अत नूर, अल फुरकान, अस सूरा, अन नमल, अल कसस, अल अनकबुल, अल रूम, लुकमान, अस सजदा, अल अहजाब, सबा, फातिर, यासीन, अस साफात, साद, अस जुमर, अल मोमिन, आमिर, अस सजदा, अस सूरा, अल जुखरुफ, अल दुखान, अल जासिया, अल अहकफ, मोहम्मद, अल फतेह, अल हुजरात, काफ, अज जारियत, अत तुर, अल नजम, अल कमर, अल रहमान, अल वाकिया, अल हदीद, अल मुजादला, अल हस मुमतहना, अल सफ, अल जुमा, अल मुनाफिकुन, अत तगबुन, अत तलाक, अत तहरीम, अल मुलक, अल कलम, अल हका, अल मुहारिज, नूह, अल जिन, अल मुजाजिमफल, अल मुदिरसर, अल खियामा, अल दहर, अल मुरसलात, अल नबा, अल नाजियत, अबासा, अत तकबीर, अल इनफितार, अत तत्फीक, अल इनसिकाक, अल बुरुज, अत तारिक, अल आला, अल गाइसार, अल फर्ज, अल बलद, अस समस, अल लैल, अल जुआ, अल इंसिरा, अत तीन, अल अलक, अल कद्र, अल बयाना, अज जिलजाल, अल अदियात, अल करिया, अत तकासुर, अल अस, अल हमजा, अल फील, अल कुरेस, अल माउन, अल कौसार, अल काफिरुर, अल नसर, अल लहब, अल इकलास, अल फलक, अन नास। आसान तर्जुमा हिंदी रोमन कुरान शरीफ। यहाँ पर पारा की संख्या दी गई है, सूरा, पृष्ठ नंबर, आयत नंबर। आलिफ लाम मीम, सूरा 1, अल फतिहा। खुदाए रहमान व रहीम के नाम से। सारी तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला है, रोज़ ए जजा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। हम सीधी राह चला
ان کی راہ پر جن پر تو نے نوازش کی، جو نہ محتوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ آیت 286 رکوعات 40۔ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ الف لام میم۔ وہ کتاب یہی ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو گاہوانہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ 5۔ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہے اور وہی ہے جو کامیاب رہیں گے۔ 6۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، تم نے انہیں خبردار کیا ہو یا انہیں خبردار نہ کیا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 7۔ اللہ نے ان کو دلوں پر اور ان کی سمعیت پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ 8۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ 9۔ وہ اللہ سے فریب کاری کرتے ہیں اور مومنوں سے بھی، حالانکہ دھوکہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کو روگ بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ بولتے رہنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ 11۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو، کہتے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ رہو، وہی ہے جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں۔ 13۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے؟ آگاہ رہی، وہی بیوقوف ہے مگر جانتے نہیں۔ اور جب مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ 15۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جاتا ہے تو بھٹکے پھر رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی قیمت پر گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ لگائی، پھر جب ان سے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی ہی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جس سے انہیں سجائی نہیں دے رہا۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب وہ لوٹانے کو نہیں، یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ تاریکیاں ہو اور گرج اور چمک ہو، وہ بجلی کی کڑک کے سبب سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دیے لے رہے ہو۔ اللہ نے تو پہلے کفر کو گھیر رکھا ہے،
गोया अनकरी बिजली उनकी आंखों की रोशनी उचक लेने को है। जब भी चमक जाती है उसमें वो चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वे खड़े हो जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उनको समाहत और उनकी निगाहों को बिल्कुल ही छीन देता। बेशक अल्लाह को हर चीज़ पर कुदरत हासिल है। हे लोगो, चंदगी बंदगी करो अपने रब की, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर उसके ज़रिए से कितनी ही पैदावार और फल तुम्हारे रिज़्क़ के लिए निकाले। तो अल्लाह के हमसर शरीफ ना ठहराओ, जबकि तुम जानते हो, और अगर उसके उसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर उतारा है तुम किसी शक में हो तो उसके जैसी कोई सूरह ले आओ, और अल्लाह को छोड़कर अपने हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज़ नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो तैयार है काफिरों के लिए, उन लोगों को जो ईमान लाए और ना जिन्होंने अच्छे काम किए। खुशखबरी दे दो उनके लिए बगात दे जिनके नीचे नहरें बह रही होगी, तब भी उनमें से कोई फल नहीं बतेरी रिज़्क़ मिलेगा। कहेंगे यह तो वही है जो हमें पहले मिला था, और उन्हीं मिलता जुलता ही मिलेगा। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा जोड़े हैं और जो वहाँ हमसे हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता है वह कोई मिसाल पेश करे मच्छर की, बल्कि उससे भी बढ़कर किसी हकीर चीज़ भी। फिर जो मोमिन है वो जानता है कि वह उनके रब की तरफ से है, हक है। रहे इनकार करने वाले तो वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह क्या चाहता है, इससे वह बहुतों को गुमराही में मुब्तला रहता है और बहुतों की हिदायत देता है, मगर इससे वह महज फासिकों की गुमराही में मुब्तला करता है, जो अल्लाह के अहद को उसे पुख्ता करने के बाद तोड़ देते हैं, और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काट डालते हैं, और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं। वही है जो घाटा उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कैसे करते हो जबकि तुम बेजान थे, और उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए वह सब कुछ पैदा फरमाया जो ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ रख दिया, जो 7 आसमान उस्तवर कर दिए हैं। वह हर चीज़ से वाकिफ़ है। और जो याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा मैं ज़मीन में इंसान को खलीफा बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा क्या उसमें उसको रखेगा जो उसमें फसाद मचाए और खूब बहाए, और हम तेरी उम्द की तस्बीह करते हैं, तुझे पाक कहते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उसने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हीं फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। बोले अज़ीम बरतर, तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई इल्म नहीं। बेशक तू सब कुछ जानने वाला साहिब हिकमत है। कहा ए आदम,
उन्हें इन लोगों के नाम बताओ। फिर जब उन्हें उनके नाम बता दिए, कहा, क्या मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमानों और ज़मीन के राज को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। उसने इनकार कर दिया और लगा बड़ा बनने और काफिर ही रहा। और हमने कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और वहाँ जी भर के रोक टोक जहाँ से तुम दोनों का भी जी खाओ, लेकिन इस दरखत के पास ना जाना वरना जालिम ठहराओगे। आखिरकार शैतान ने उन्हें वहाँ से फिसला दिया, फिर उन्हें वहाँ से जहाँ वो थे निकलवा कर छोड़ा। हमने कहा कि उतरो, तुम और दूसरे को दुश्मन होने और तुमने एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ कालिमात करने की तौफीक पा ली तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला निहायत रहने वाला है। हमने कहा, उतरो यहाँ से सब, फिर जो तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत पहुँचे। तो जिस किसी ने मेरी हिदायत की पैरवी की तो ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही आग वाले हैं और वो हमसे रहेंगे, उसमें रहेंगे। हे बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नवाजिश को जो मैंने तुम पर की थी और मेरे अहद को पूरा करो। मैंने तुम्हारी अहद को पूरा करूँगा और मुझी से डरो और ईमान लाओ उस चीज़ पर जो मैंने उतारी है और उसकी तस्दीक में है और जो तुम्हारे पास है, और सब में बढ़ चढ़ कर तुम पर ही उसके इनकार करने वाले ना बनो और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत हासिल करने का जरिया ना बनाओ। मुझसे ही तुम डरो और हक में बातिल की आमेजिश मिलावट ना करो और जानते बूझते हक को मत छुपाओ और नमाज कायम करो और नकात दो और झुकने वाले के साथ झुको। क्या तुम लोगों को तो नेकी और एहसान का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? हालांकि किताब भी पढ़ते हो, फिर क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? सब्र और नमाज से मदद लो और बेशक गिरा दुश्वार है मगर उनके लिए नहीं जिनके दिल झुके हुए हो, जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ उन्हें लौटना है। ए बनी इज़राइल, याद करो मेरी उस नवजीस को जो मैंने तुम पर की थी और उसे कि मैंने तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब ना कोई किसी की तरफ से कुछ तवान भरेगा और ना किसी की तरफ से कोई सिफारिश की कबूल की जाएगी और ना किसी से जानिब से कोई फिदया लिया जाएगा और ना वो मदद ही पा सकेंगे। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से छुटकारा दिलाया और तुम्हें बदरिज दुख पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों क्यों जब करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और यह तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश हुई है। याद करो जब हमने तुम्हें समुंदर में अलग अलग राह से ले जाकर नजात दी
और फिर होनियों को तुम्हारी नज़रों के सामने डुबो दिया। और याद करो जब हमने मूसा ले 40 रातों का वादा ठहराया तो तुम उसके पीछे बछड़े को माबूद बना बैठे। तुम जालिम थे। फिर इसके बाद भी हमने तुम्हारे सिलसिले में दरगुजर से काम लिया कि तुम शुक्रगुजार बनो। और याद करो जब हमने मूसा की किताब को फुरकान आता किया ताकि तुम राह पा सको। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरे लोगों, बछड़े को महबूद बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, तो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू हो जाओ। फर्ज अपने आदमियों को खुद कत्ल करो, यही तुम्हारी पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है, निहायत रहम करने वाला है। और याद करो जब जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम ईमान लाने का नहीं है जब तक अल्लाह को अलनिहा ना देख सके। फिर कड़क ने तुम्हें आ दबोचा, तुम देखते रहो। फिर तुम्हारे बेजान हो जाने के बाद हमने तुम्हें झिला उठाया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर मन और सलवा उतारा। खाओ और अच्छी पाक चीज़ें हम तुम्हें अता की। उन्होंने हमारा जो कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो अपने ही ऊपर सितम ढाते रहे। और जब हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो, फिर उसमें से जहाँ से जी भर कर खाओ। दरवाजे में सजदा गुजर बनकर दाखिल हो और कहो हितून हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और अच्छे से अच्छा काम करने वालों को हम मजीद नवाजेंगे। फिर जो बातें उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे दूसरी बात से बदल दिया। आखिरकार जालिमों पर हमने जो नाफरमानी वो कर रहे, उसके सबब से आसमान से अजाब उतारा। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की थी, तो हमने कहा चट्टान पर अपनी लाठी मारो और उससे 12 चश्मे फूट निकले और हर गिरोह ने अपना अपना घाट जान लिया। खाओ और पियो और अल्लाह का दिया और ज़मीन में मुफसिदीन बनकर रुसिया मत दो। और याद करो जब तुमने कहा हे मूसा, हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, बस तुम हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वह हमारे लिए ज़मीन की पैदावार से साग पात, ककड़िया और लहसुन और मसूर प्याज निकाले। कहा क्या तुम तो अदना है और उससे बदल कर लेना चाहते हो, तो बेहतर है कि किसी से शहर में उतरो और फिर जो कुछ तुमने मांगा तुम्हें मिलेगा। और उन पर जिल्लत और बदहाली थोप दी गई और वो अल्लाह के गज़ब के सजावर हुए। यह इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों पर इनकार करते रहे हैं और नाबियों की नाहक कत्ल के दर पे होते रहे। यह इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से तजावुज़ करते रहे। बेशक अहले ईमान और जो यहूदी हुए और ईसाई के सभी जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाए और अच्छा काम करे, तो ऐसे लोगों का अपने अपने रब के पास अजर है। ना तो उनको कोई डर होगा और ना गमगीन होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम अगली वीडियो से आरंभ करेंगे। तो मिलते हैं, आपसे हम विदा लेते हैं।